Hello students, today we are going to start your 10th class science subject. In this we are going to start your biology subject, that is science part 2nd, and in that we are going to start your second chapter, life processes in living organism part 1st. In this chapter you will learn energy production, the processes of energy production, कि हमारे ह्यूमन बॉडी में या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर 10th एग्जाम. फर्स्ट, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस. So first we will learn basics about living organism. You all know that living organism they are divided into two types, unicellular and multicellular. Living organisms are divided into two types, unicellular and multicellular. Unicellular organism means they have single cell body. Their body is made up of only one cell, only single cell. They are called unicellular organism, and that's why their body organization is simple. अभी वो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं. आपको पता है सेल मतलब सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्म and nucleus. These are the two main parts present in the cell, cytoplasm and central part nucleus. फिर nucleus में DNA होता है, cytoplasm has mitochondria, then ribosomes, vacuoles. There are many cell organelles present in the cytoplasm and nucleus contain DNA. In this single cell, all the life processes such as energy production, digestion, reproduction, ये सब सिर्फ एक ही सेल में चलते रहते हैं by using these organelles. This is called unicellular organism, कि एक ही सेल में उनका पूरा वर्क होता है. They are made up of single cell and एक ही सेल से बने हैं. That's why their body organization is very simple and वो ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती. Now multicellular organism, other type is multicellular organism. Multicellular, they are made up of multiple cells. उसके नेम में भी है multicellular, means it is made up of multiple cells. जो भी higher animals है या plants और humans, they are all multicellular organisms. Now because of the multiple cells, their body organization is complex. अभी उनमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, मेनी सेल्स से एक बॉडी बनी है, तो इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस करेंगे. एंड इसीलिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, इट इज मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स. जब बहुत कुछ चीज़ें होती है तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है. एंड दैट्स व्हाई multicellular animals has complex body organization. Now we will see why complex. Because in multicellular many cells come in a group and they make tissues. different types of tissues.
these different types of tissues coming together, they makes organs, and when different organs work together, they form organ system. It means body. मल्टीसेल्युलर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं कि एक ग्रुप में आके वो टिश्यूज बनाते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन अवर ह्यूमन सेल्स एंड ऑल्सो इन अदर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जब एक साथ काम करते हैं, दे फॉर्म अ ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन दे मेक अ ऑर्गन सिस्टम मीन्स अवर बॉडी. जैसे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स. और हमारे सेल्स में आपको पता है कि जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, ऑल दीज डिफरेंट ऑर्गन्स दे डू डिफरेंट फंक्शंस, दे कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस एंड अवर लाइफ प्रोसेसेस. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी आपको समझ में आया, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. मल्टीसेल्युलर सेल एंड उनकी बॉडी बहुत सिंपल है, इसीलिए उनकी लाइफ प्रोसेसेस भी सिंपल रहती है और उनको एनर्जी ज़्यादा नहीं लगती. एंड देन मल्टीसेल्युलर, उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है. वाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स एंड उनको वर्क करने के लिए या लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. So we know basic information about living organism and their body organization. So now we will see life processes. You know that life processes means क्या कि जो प्रोसेसेस हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, कि अगर वो प्रोसेसेस हमारे बॉडी में नहीं हो तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकते. ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस है? जैसे कि डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन. These are all the processes which are continuously carrying out in our body. हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है. सो ऑल दीज प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, जिनके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है. तो अगर हम पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी की लाइफ प्रोसेसेस देखें तो हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है जो कि ये लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करती है. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, इंटेस्टाइन, ऑल दिस ऑर्गन्स दे कैरीड आउट डाइजेशन. रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन बाय यूजिंग हार्ट. तो वेरियस ऑर्गन्स दे कैरीड आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस बट इन अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन. ऐसे नहीं कि सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही काम है, या सर्कुलेशन है तो सिर्फ सर्कुलेशन का. ऑल दिस प्रोसेसेस दे आर कैरिड आउट बाय ऑर्गन्स इन कोऑर्डिनेशन, कि हर एक ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है, तभी ये सब लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूसली चलती है. तो हमने अभी देखा कि हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फूड इज़ वेरी नेसेसरी, फूड इम्पॉर्टेंट है. बट another factor for energy production in our body is very necessary, that is oxygen. आपको पता है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते. तो ये जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है. इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन एनर्जी प्रोडक्शन. तो फूड plus oxygen, both the things they are important for energy production, and this energy production takes place in a full complete coordination of our organ system. How? अभी coordination कैसे चाहिए? जैसे कि अभी हमने क्या किया, we eat food from माउथ में लेकर हम फूड को ईट करते हैं. इसके बाद क्या होता, इट इज डाइजेस्टेड इन स्टमक. वो क्या होता है कि हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है. मतलब क्या हुआ
कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ने यहाँ पे हेल्प किया। देन जो भी न्यूट्रिएंट्स स्टमक में रिलीज होते डाइजेशन के बाद वो क्या होते हैं, दे आर सर्कुलेटेड, न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू सेल बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए हैं डाइजेशन के बाद तो वो हर एक सेल को ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय यूजिंग अ सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ने भी काम किया, सर्कुलेटरी सिस्टम ने भी क्या काम किया। उसके बाद सेल के अंदर जाने के बाद देन एनर्जी is produced inside cell by mitochondria। फिर जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सेल के अंदर जाते हैं तब माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से एनर्जी इज प्रोड्यूस। एंड उसमें और एक सिस्टम काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट के साथ ऑक्सीजन को मिक्सअप करती और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। सो लाइकवाइज आवर ऑल द ऑर्गन सिस्टम दे कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू do any function or to do a carry out energy production। and also there is one another system, our control system। ये सब प्रोसेसेस कैसे होती है, our control system, that is central nervous system। so this was the introduction of living organism and life processes। I hope आपको ये समझ में आया है।